So hi Soham. Hi guys, hi everyone. So Soham has 16 plus years of experience in immersive tech and all those VFX and augmented reality and all such technologies. So let's talk about these technologies and how you get into this. Let's talk about you. Okay, so I am a like I have done my bachelor's in visual arts. Visual arts में मैंने bachelor's किया है और उसके बाद I joined advertising industry, advertising and branding and design industry right after my college. So I worked for like 7 years in the industry with, working with top advertising agencies and design studios. But got bored with the static mediums. Like I was a graphic designer. So I used to do a lot of branding, logos, packaging, all those stuff. But I was looking for something exciting. And in 2008, I was working with a company called Ogilvy. It's one of the top advertising agencies, and I was saturated there. So I just quit my job, and three of my colleagues from Ogilvy, we started a company, not Transhuman Collective. It was a different company. It was called And uh, in 2008 ऐसा कुछ भी नहीं था प्रोजेक्शन या इमर्सिव एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी वर्ड कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब तो बट व्हाट वाज एग्जिस्टेड वाज विजुअल जॉकिंग अगर आप देखोगे डीजे जो म्यूजिक बजाता है उसके साथ जो विजुअल्स होते लाइव मिक्सिंग ऑफ विजुअल्स लाइक हाउ डीजेस मिक्स म्यूजिक VJs mix visuals. It's not as video jockey like we had seen in MTV और we वो video jockey नहीं है तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट हो गया कि ये एक नया चीज है तो मैंने वो करना शुरू किया तो उस टाइम पे कोई वीजे इंडिया में था ही नहीं यानी एक दो लोग थे तब तो हम साथ में मिलके वी स्टार्टेड डूइंग दिस वीजेइंग डीजेस के साथ म्यूजिक मिक्स कर रहे विजुअल्स तब से मेरा इंटरेस्ट आया प्रोजेक्शन में और लाइक टेक्नोलॉजी में क्योंकि प्रोजेक्टर है उसके पहले तो कंप्यूटर में बैठ के डिजाइन बनाना है उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी मेरा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था माय डैड इज into nuclear and nanotechnology so Wow. he is quite advanced technology he used Wow. to work with Baba Atomic Center so I have been in a technological environment and my dad has always pushed me and like when I was a kid my dad used to give me कि ये बैटरी है ये मोटर है ये लाइट से सबको कैसे कनेक्ट करना है ये सब मैंने बचपन में थोड़ा बहुत किया है तो ऐसे शुरू हुआ मेरा जर्नी एक्चुअली Wow, it's pretty interesting because जो आपने word अभी बोला है visual jockeying. So even I used to know that there's something called VJ, video jockey. But visual jockey is something which even I had no idea about, and you started this in doing here in India और ये सारी चीज़ें. So it's pretty amazing journey. So let's talk about this company, Transhuman Collective. So आपने बहुत तरह के ब्रांड्स के साथ काम करा है ऑल द मेजर ब्रांड्स इंक्लूडिंग एडिडास इंक्लूडिंग ऑल दोज कार ब्रांड्स सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द आइडिया केम ऑफ स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप एंड डूइंग दिस सो कैसे ये सब शुरू हुआ Actually, the transition was quite smooth because before this it was and then. So and then में क्या था कि ये there was no business model for this kind of applications there was no augmented reality or projection mapping in like 2010 11 ऐसा कुछ भी नहीं था तो हम ब्रांडिंग डिजाइन का काम करते थे तब लाइक वी यूज्ड टू डू ब्रांडिंग डिजाइन ऑल दोस वर्क and we already had clients like we used to work with brands like HUL and Absolute and all those brands तो उन अब धीरे धीरे इंडिया में ये आ रहा था ये सारी चीजें तो हमने अपने आप को पुश किया और हमने क्लाइंट को जाके बोला कि ये ऐसा कुछ नया कर सकते हैं राइट तो वैसे करके हम अपने आप को पुश किया कि ये कुछ नया हो सकता है और हमारे लिए इट्स अ like for a so Transhuman is co-founded by myself and my partner Snehali. We are actually married also and we are classmates from college. वाओ So we are in the same space. So we decided कि इसको यानी basically it was like a medium for us. It was a tool like a medium of expression, creative expression. तो
उसमें हमें मजा आने लगा और हम खुद ही एक्सपेरिमेंट करके उसको, यानी एक्सपेरिमेंट करते करते हमने फिगर आउट किया ये सारा। हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, लाइक ट्रांसफॉर्मर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज डिजाइन। लाइक वी डोंट position ourselves as a technology company, we position ourselves as a design company. Wow. Then all our competitors, all the companies in India are all technology company or advertising company or design company, but we are a mix of all of it. सो या आपकी पोर्टफोलियो में मैं गया और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखा। आपने कई सारे इवेंट्स तो करे हैं जो ऑगमेंटेड रियलिटी वीएफएक्स को हाईलाइट करते हैं, बट आपने कुछ ऐसे इवेंट भी करे हैं जो इवेंट डिज़ाइन थे, कंप्लीटली इवेंट डिज़ाइन, लाइक यू कंस्ट्रक्टेड अ फार्म काइंड ऑफ थिंग एंड ऑल दोस काइंड। सो काफ़ी क्रिएटिविटी का काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और इट्स अ फैंटास्टिक। एंड मैंने इस तरीके का काम बहुत ही कम देखा है इंडिया में। सो आपने सच में कमाल का। सो एक और टेक्नोलॉजी है जिस पे आपने काफ़ी काम किया है, विच इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन मैपिंग। एंड प्रोजेक्शन मैपिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सो प्रोजेक्शन मैपिंग कैसे स्टार्ट हुआ, एंड प्रोजेक्शन मैपिंग, हाउ डिड यू स्टार्टेड प्रोजेक्शन मैपिंग? ये प्रोजेक्शन मैपिंग शुरू हुआ विजुअल जॉकिंग। तो विजुअल जॉकिंग में क्या होता है कि डीजे है, डीजे के पीछे के साइड पे या कोई वॉल पे प्रोजेक्शन होता है विजुअल्स का, राइट। तो वो मैपिंग नहीं है, वो सिंपल रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन मैपिंग इज अ टेक्निक, आई विल एक्सप्लेन, कि हम हमेशा एक प्रोजेक्टर लेके स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इट्स अ फ्लैट प्रोजेक्शन, ऐसा रेक्टेंगुलर 6:9 या 4:3 का प्रोजेक्शन दीवार पे होता है, फ्लैट सरफेस पे। प्रोजेक्शन मैपिंग जो टेक्निक है, उस टेक्निक से हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्शन कर सकते हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, यानी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्निक है। राइट। उस दोनों में फर्क। वो एक्चुअली हमने काफी सारे प्रोजेक्शन मैपिंग, जैसे कार के ऊपर प्रोजेक्शन मैपिंग है, तो उसके अंदर वो पूरे कार को एक्चुअली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको ड्रॉ करना पड़ेगा कार को, यानी कार के ऊपर हमें ड्राइंग करके उसको ट्रेस करना पड़ेगा। जैसे हमने खिड़की ट्रेस कर दिया, हेडलाइट ट्रेस कर दिया, दरवाजे ट्रेस कर दिया, और फिर हम कंटेंट बनाएंगे उस मैप के हिसाब से। तो लगेगा कि गाड़ी बंद है, पर हमें ऐसा लगेगा कि दरवाजा खुल गया है या लाइट चालू हो गया है या कुछ भी। तो इट्स लाइक अ मैजिक, इट्स अ काइंड ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी ओनली, बिकॉज दैट्स द रियलिटी एंड वी आर ऑगमेंटिंग content on that reality to create something magical. So that is projection mapping. Also, amazing explanation of projection mapping. We have also seen the projection mapping and on buildings like Burj Khalifa and all those and also the car example you have given, it's amazing. Also, let's talk about the AR versus VFX, because I showed some of your videos and there was like a lot of people were commenting that it's AR, a lot of people are commenting it's VFX. So what is it exactly in your terms, and how do you define and differentiate between AR and VFX? Because there's a lot of comparison between AR and VR, but that can be easily differentiated if you have heard of the terminology. आप easily दोनों में difference बता सकते हो कि headset लगाया है तो VR है और वरना AR है मोबाइल से अगर आप देख रहे हो तो। बट यहाँ पे VR और AR and VFX it's pretty similar. So कैसे आप इनके बीच का difference करते हो या क्या है? अच्छा, तो VFX अगर बोलेंगे तो VFX इज विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स का सबसे सिंपल एग्जांपल है जो हम मूवीज में होता है, मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स जो हम, वो विजुअल इफेक्ट्स है, ठीक है। जैसे हम समझ लेंगे कि जैसे अवतार हमने देखा है, या कोई भी आजकल तो सारे मूवीज में VFX ही, यानी उन लोग ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हैं और सारा रियल, यानी बाकी का बैकग्राउंड और सब कुछ क्रिएट होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल VFX, और अगर AR VR के बारे में बात करें तो AR VR, यानी AR most of the time it's live. AR is always live because it's augmenting your current reality through a mobile phone. अगर हमारा जैसे मेक इन इंडिया लायन है, उधर एक बड़े स्क्रीन पे दिख रहा है लोगों को, बट एट ए वेरी सिंपल लेवल AR में यू नीड अ कैमरा. राइट नाउ द टेक्नोलॉजी, the camera is your eye,
be it a mobile phone or be it on a LED screen or a MR like Magic Leap or HoloLens. It's basically a camera which is capturing your reality and then projecting back to you. So this is the very simple explanation of VFX and AR. अमेजिंग. सो ये काफ़ी अच्छा आपने डिस्क्रिमिनेशन दिया है कि अगर वो लाइव हो रहा है तो वो ए आर है, एंड इफ हाँ. वो लाइव नहीं है तो वो वी एफ एक्स की कैटेगरी में आ जाता है. अमेजिंग. Yes. So let's talk about some of the ground events which you have done. One of most significant is the Sunburn event. तो सनबर्न गोवा में होता है एंड काफ़ी लाउड इवेंट होता है, काफ़ी म्यूजिक फेस्टिवल, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है वो. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस और किस तरह का जर्नी रहा वहाँ पे, क्या आपको नया देखा एंड ऑल दैट थिंग्स, व्हाट वाज दिस? Yeah, so Sunburn is Asia's largest music festival. तो उसका फुटफॉल कुछ 2-3 लाख लोगों का होता है ओवर 4 days. तो उसमें क्या होता है कि सनबर्न तो है ही, काफ़ी सारे ब्रांड्स उधर इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उन लोग अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं उस जगह पे. तो हमने जो शुरू किया सनबर्न में काम, वो एक ब्रांड के साथ ही किया, ITC इज सिगरेट ब्रांड. सो उन लोग एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, तो दे हैव देयर ओन IPs. तो बेसिकली उधर क्या होता है कि सनबर्न के अंदर लोग अपना ब्रांड ब्रांड्स क्रिएट देयर एक्सपीरियंस. तो उसमें ही हमने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया जिसके अंदर सनबर्न के फुटेजेस सारे लोगों ने देखा होगा कि एक डीजे, ऑब्वियसली वर्ल्ड के सारे फेमस डीजे आते हैं उधर, एंड डीजे एकदम ऊपर स्टेज पे होता है और लोग नीचे होते हैं. तो कम से कम 40-50 फीट का हाइट है. तो वो एकदम ऊपर खड़ा हो. तो हमने आइडिया निकाला कि नीचे से तो लोग सब डीजे को देखते हैं, पर डीजे को क्या दिखता है वो तो लोगों को पता ही नहीं है. तो हमने एक पूरा VR, ये 2015 में किया, तब VR कोई कैमरा एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो हमने रिग बनाया 6 GoPro से, 6 GoPro लगा के एक रिग बनाया और रिग को हमने डीजे के जो कंसोल होता है उसके ऊपर हमने लगा दिया. तो लाइव डीजे का पूरा 360 जो पॉइंट ऑफ व्यू जो डीजे देख रहा है वो हमने लाइव स्ट्रीम किया एक जोन में, नीचे एक जोन में लाइव स्ट्रीम किया. तो आपको लगेगा कि आप खुद डीजे बन गए हो और आप इधर अपना यू आर मूविंग योर हेड एंड यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दैट whole experience of that DJ. Wow, so it's I just amazing. like always for stories. Like हमारे लिए क्या है, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज सेकेंडरी. हम स्टोरी देखते हैं कि स्टोरी और एक्सपीरियंस ऑडियंस को क्या मिलेगा, और डिजाइन, एस्थेटिक्स, टेक्नोलॉजी सब मिलके एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना हमारा बेसिकली हमेशा हम वही उस पर ही ध्यान देते हैं. Amazing. So live feed from DJ's perspective is something really unique. Wow. So let's talk about art and creativity. We have seen you talked about this a lot. आपने काफ़ी art और creativity में काम करा है. And as you have already said कि आपकी कंपनी एक डिज़ाइन कंपनी है. So what, in your perspective, what is art, what is design, what is creativity, and इंडिया में आप इसका कितना यूज़ देखते हो, फ्यूचर में इसका कितना स्कोप देखते हो, और लोगों को इसकी तरफ जाना चाहिए और पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस कि अपने बच्चों को आर्ट में भी जाने दें एंड क्रिएटिव बनने दें. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? So being a creative person for so many years, like that is the best journey you can ever take, because being creative is you are creating something new every day. So it's not a like I'm not telling कि बाकी सारे काम बोरिंग है, but 9 to 5 तो है ही, बट आप एक ही काम हर रोज कर रहे हो, जैसे स्पेशलाइजेशन है यानी. बट क्रिएटिविटी क्या है कि हर रोज आपको एक नया चैलेंज है. और अभी के यानी आज मैं 2003 में मैंने पास आउट किया था MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, इज वन ऑफ द टॉप आर्ट स्कूल्स इन इंडिया. तो उस टाइम पे तो वही है कि नेचुरली फाइन आर्ट्स कॉलेज से निकल के आप पेंटर, स्कल्प्टर या अप्लाइड आर्ट्स, जो मैंने अप्लाइड आर्ट्स किया, तो एडवर्टाइजिंग डिजाइन में लोग जाते हैं. तो अभी जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्ल्ड है, यानी अभी सब लोग क्रिएटर्स है. इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, सब ऑलरेडी क्रिएटर्स है.
राइट। तो अभी का टाइम बेस्ट, अभी कंटेंट का जमाना है, यानी एवरीथिंग इज कंटेंट। तो बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री और मजेदार है, मैं बोलूंगा कि बहुत फन है। चैलेंजेस तो सभी इंडस्ट्री के हैं, बट फन बहुत ज्यादा है। राइट। और वर्चुअल रियलिटी भी एक मीडियम है बेसिकली स्टोरी टेलिंग का, लाइक गेम्स आर मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग और मूवीज आर मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग, शॉर्ट फिल्म्स, वर्चुअल रियलिटी, these all are medium of conveying what you have, what is your perspective, opinion, all those things. So let's talk about, you have did a lot of shoots with the biggest celebrities of India, like I must say, because you have did shoot with Amitabh Bachchan, you have did shoot with MS Dhoni, Virat Kohli, all those big figures. So what was the experience, and how was it? एक्चुअली ये भी मैं बताऊंगा कि whenever we like we are considered one of the experts in the industry, Hmm. and at the end of the day whatever we create is like lot of clients Benchmark. also I say that we are बेंचमार्क तो है ही, वी आर मैजिशियंस। लाइक Right. ये कंटेम्प्रेरी मैजिक है, आप देखो। तो ये जब भी हम जैसे अमिताभ बच्चन फॉर एग्जांपल, तो हमने जो प्रोजेक्ट अमिताभ बच्चन जी के साथ किया था, वो पहला ऑगमेंटेड रियलिटी अमिताभ बच्चन जी भी कर रहे थे, पहला अपना ऑगमेंटेड रियलिटी इवेंट। तो वो हमसे ज्यादा तो वो एक्साइटेड थे Wow. कि ये कुछ मैजिकल हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ। एंड इट वाज ए कोरियोग्राफ्ड ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी उनको ऐसे इंटरेक्टिव असली में नहीं है, बट उनको वो एनिमेशन जो है ऑगमेंटेड, उसके साथ उनको सिंक करना पड़ेगा, यानी उनके एक्शंस और सब। He had तो to उन्होंने ऐसे think in mind कि यहाँ पे सच में कोई ऑब्जेक्ट है, and he had to interact like a real object, but nothing will be there, right? हाँ, उनके लिए उनके सामने एक मॉनिटर था, टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं, Okay. प्रॉम्प्ट उनको दिख रहा था। Hmm. बट उन्होंने आई थिंक 3 रिहर्सल में उन्होंने परफेक्ट कर दिया, Wow. क्योंकि वो अमिताभ बच्चन है। तो और उनके साथ बहुत मजा आया, क्योंकि ये कुछ नया वो कर रहे थे। Hmm. फिर उन्होंने हमको फिर से अपने घर पे बुलाया, जस्ट टू थैंक अस कि आई हैड लाइक सो मच फन एंड वी शुड डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। सो ही Wow. इज वेरी एंथु। And Amazing. also we shot with not just Virat Kohli, Dhoni. We have shot lot of times with him. We created augmented reality with Dhoni. So basically, you go and stand in front of a screen, and Dhoni will come and stand and take a selfie with you. Wow. So that we have done with Dhoni. And और हमने IPL के लिए सारे कैप्टन्स के साथ एक पूरा वीडियो क्रिएट किया था। It was a simple chroma shoot. It's not no technology or anything, but lot of fun. Lot of fun. एक और आपने एक बहुत कमाल का प्रोजेक्ट करा था विच वॉज मेक इन इंडिया AR. सो मेक इन इंडिया इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट इंडिया में कोई भी इमेजिन कर सकता है, बिकॉज पूरे इंडिया की प्रेस्टीज की बात है, इट हैज टू बी द बेंचमार्क, राइट? सो यू डिड दैट ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस. सो एक क्वेश्चन ये है कि आपको अप्रोच कैसे मिला इस प्रोजेक्ट का, ये किस तरीके से डिस्कशन वगैरह ऑल, एंड द अदर वन इज व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आपके किस बेसिस पे आपने ये डिज़ाइन के बारे में सोचा, विच वॉज अ फैंटेस्टिक डिज़ाइन जो आपने मेक इन इंडिया के लिए बनाया, द टाइगर विद द रनिंग क्लॉक्स इन देयर. So all those gears, mechanical tiger. So yeah, loin, right? So what was the journey for that? Yeah, so basically, there's a company called Wizcraft. They are one of the biggest event agencies in India. तो जो आईफा जो प्रॉपर्टी है वो लोग करते हैं, आईफा पता ही होगा, आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड्स। तो विस्क्राफ्ट ने हमें अप्रोच किया कि आइडिया उनका था कि ऐसा लायन एक ऑडियंस के बीच में से चल के आएगा। ये दिस वाज बेसिकली द इंटरनेशनल लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इन जर्मनी। सो ये जर्मनी में हुआ था ये इवेंट, राइट? तो हमारा ब्रीफ ये लायन एक बनाना है जो चल के आएगा, और हमें दिखाना है वर्ल्ड को कि इंडिया पीछे कहीं नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज। ये ब्रीफ है, यानी बेसिकली इंडिया को आगे करना है। तो इसीलिए हमने हाँ, तो वो पूरा टेक्निक जो है, जो लाइव इवेंट्स में ऑगमेंटेड रियलिटी, वो हम लेके आए उस प्रोजेक्ट के थ्रू। कि आप बैठे हो, आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन 100 फीट का, और आप अपने आप को देख रहे हो, यानी सारा ऑडियंस दिख रहा है उसमें, और
लायन चल के आ रहा है, ऑब्वियसली रियल में नहीं है बट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि वो लायन आपके बीचों बीच चल के आ रहा है. सो नरेंद्र मोदी, एंजेला मर्केल एंड ऑल टॉप politicians, CEOs, everybody was there, and I think that was our biggest project which brought us to the limelight. Absolutely. After Make in India, we दैट वॉज बीइंग, आई मीन उसको तो पूरे विश्व ने ही देखा और साथ ही साथ पसंद भी करा कि दैट दैट वॉज सिंपली अमेजिंग. ऑल्सो सिंस आपने इस तरीके के काम करे हैं जो मतलब पूरे वर्ल्ड में एक बेंचमार्क है पूरे वर्ल्ड के लिए, हर कोई उसे अचीव करना चाह रहा है. सो व्हाट वाज द चैलेंजेस बिहाइंड ऑल दिस एंड हाउ डिड यू ओवरकम सम पार्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस वुड बी फैंटास्टिक. सी चैलेंजेस तो हर एक प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम कुछ नया करने जा रहे हैं. तो व्हाट आई से इज दैट वी आर वेरी फियरलेस. हमें हमारे पास कोई भी चैलेंज जब आता है तो हम कभी भी डरते नहीं कि अरे ये कैसे होगा. राइट. जब मेक इन इंडिया भी किया था, हमारा टीम बहुत स्मॉल था, हम 4 लोग हैं सिर्फ. बट इफ यू सी आवर कंपनी इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमन कलेक्टिव. तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्टिव ऑफ like engineers, coders, designers, animators from all over the world. So this is the network we have created for last 15 years. So that network is our power. तो हम इसीलिए कोई भी चैलेंज जब हमारे पास आता है तो हम कभी भी नहीं सोचते कि अरे ये कैसे होगा, क्योंकि चाहे हम वो खुद इन हाउस नहीं कर पाए, हम कोलैबोरेशन से उसको अचीव कर पाएंगे. मतलब कैसे भी मेक हो, इन इंडिया अगर if something is there, आपने एक बार डिसाइड कर लिया है, so you will make it happen. Yeah, and there has been failures also. It's not like कि हमेशा ही बहुत अच्छा होता है. ऐसा हुआ है कि हमारे इवेंट में प्रोजेक्टर चालू नहीं हुआ है. यानी टेक्निकल चीज ऐसा होता है कि कभी भी धोखा दे सकता है, बट टेक्नोलॉजी इज लॉजिक. तो वो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम है. वो ऐसा मैजिकली चला नहीं जाएगा. तो वही है कि चैलेंजेस है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो कोई इंटरनेशनल लेवल पे, और यानी आपका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है. ऑब्वियसली एजेंसीज है, उनके पास भी है, उनके क्लाइंट्स है, हम हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है. तो वही है कि काम रहना है, अपने आप को यानी कॉन्फिडेंट रहना है, और कुछ भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना है किसी को. सो दैट इज, ऐसा जो नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा. एब्सोल्युटली. मेरे भी प्रोजेक्टर्स बहुत बंद होते हैं. हाँ. सबके होते हैं यार, टेक्नोलॉजी तो है ही. यस. सो लेट्स टॉक अबाउट योर मैसेज. अगर आपको, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, अगर आपको उन्हें कोई मैसेज देना है आपकी तरफ से, सो व्हाट वुड इट बी? सी व्हाट वी हैव टू सी इज कि हम टेक्नोलॉजी और डिजाइन या क्रिएटिविटी को अलग नहीं कर सकते. राइट. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्योंकि टेक्नोलॉजी एक चीज है, जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा. हम एक जमाना था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ठीक है. ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में हम कितने सारे मूवीज देखते थे, इतना अच्छा लगता था. आज आ गया है 4K अल्ट्रा HD टीवी, ठीक है. अब उसके अंदर आप एक गंदी सी मूवी अगर लगाओगे तो मूवी गंदी रहने वाली है. अल्ट्रा HD से वो मूवी अच्छी तो हो नहीं जाएगी. राइट. हाँ. तो स्टोरी उसमें इंपॉर्टेंट है. चार्ली चैपलिन हम देखेंगे आज भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में, हमें उतना ही एंटरटेनिंग लगेगा, हमें HD चाहिए भी नहीं उसके लिए. राइट. तो टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि फोर्स फिट होना चाहिए. जो भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगा सारे लाइक डेवलपर्स और जो टेक्निकल साइड में है ज्यादा, उनको भी क्रिएटिव होना पड़ेगा. यानी क्रिएटिविटी सब में होता है, तो उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है. जैसे सिंपल एक मोबाइल ऑगमेंटेड हमने कुछ बना है, एक सपोज एक ट्रैकर है और वो ट्रैक हो रहा है, 3D कुछ आ गया है, 3D मॉडल है. अब वो मॉडल का जो डिटेलिंग है, ठीक है, वो कितना रियलिस्टिक है, क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी है. अगर वो रियलिस्टिक लग ही नहीं रहा तो आपको लगेगा कि ये एनिमेटेड चीज है. तो ज्यादा लाइक टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो ऑगमेंटेड रियलिटी में जैसे पॉली काउंट और ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मॉडल हल्का होना पड़ेगा. टेक्निकल है थोड़ा, और पॉली काउंट्स कम होने पड़ेंगे. तो वो टेक्निक सीखना पड़ेगा कि कैसे हम कम पॉली काउंट में भी रियलिस्टिक एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं.
Exactly. तो ये हम भी यही सब एक्सपेरिमेंट और R&D अभी हम यही सारा कर रहे हैं. Low poly models or come shaders, right? कम So शेडर्स, एब्सोल्युटली कैसे. हाँ. आप टेक्नोलॉजी और आर्ट को डिफरेंशिएट मत करो, और आप किसी एक में भी आप अच्छे होकर आपका काम नहीं बनेगा. अल्टीमेटली यू हैव टू combine these two. So this is a very और एक अभी yeah one more thing I would like to add is collaboration, which is collaboration. I feel in India is little missing, because if you see in like Europe, when all these things are happening, like all the innovations, like the biggest innovations are happening in Europe, they are very collaborative. We have to be very collaborative and give credit to everyone of like everybody involved in the project, and हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, Right, बट absolutely. 5 लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. Absolutely. अगर आप देख रहे हो, आपने बोला हमारा काम इतना अच्छा है, आपने सबको अच्छा लगता है, तो वो उसका एक ही सबसे बड़ा पॉइंट है कोलैबोरेशन, क्योंकि हम बेस्ट लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे एनिमेटर्स हो गया या कंटेंट क्रिएशन, कोडर्स, काफी सारा. एंड नाउ वर्ल्ड इज अ स्टेज, लाइक हम काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग हम जर्मनी या स्वीडन से हम हमारे पार्टनर्स है जिनके साथ हम कोलैबोरेट करके करते हैं, जो इंडिया में शायद वो स्किल अभी तक है नहीं. तो यू डोंट हैव टू लिमिट योरसेल्फ कि ये अगर मुझे करना है तो यू कैन एब्सोल्युटली डू, देयर इज नो वे लाइक ऑफ नॉट डूइंग इट. अमेजिंग अमेजिंग. सो और हमने जो ये कम्युनिटी स्टार्ट करी है, इसका भी मेन जो कोर है वो कोलैबोरेशन ही है. सो आप कम्युनिटी पे आओ. इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, यू कैन बेसिकली फाइंड पीपल हु आर टीचिंग, और आप उनकी नॉलेज शेयर करके. और अगर आप हर कोई, आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा कि हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता, इस कारण आप कोलैब करते हो, आप अपने स्किल्स को कंबाइन करते हो फॉर अ सिमिलर पर्पस, एंड देन यू ब्रिंग आउट समथिंग जो आपकी रीच से काफ़ी बाहर का होता है. That's how you pushed your limits on and on. So thanks for giving us such great knowledge, and we had so much to learn from you. आपसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला आज के इस लाइव में. So और थैंक यू फॉर कमिंग. आप बहुत हम्बल हो. मैंने आपको एक बार बोला एंड यू डिडंट सी एनीथिंग, एंड यू जस्ट agreed on the schedule and all everything. Thank you. नहीं, I'm glad I'm here. I'd like to tell to the audience also, anytime somebody is stuck with anything, you can just like give me a call or send me a mail. I'm always open for the community, for everyone. Any help you need in Bombay, I'm there. Like we are there. We are a collective. So don't hesitate. ऐसा कुछ भी नहीं है कि यानी हम साथ मिलके ही करना है. एंड कम्युनिटी बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि कम्युनिटी होगा तभी वो और आगे बढ़ेंगे क्लाइंट्स के पास. और जैसे आपके पास अगर कुछ प्रोजेक्ट है और आपको लग रहा है कि चैलेंज है, तो हम साथ में मिलके वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हमेशा ही कर सकते हैं, यानी Absolutely. तो थैंक्स फॉर शेयरिंग योर टाइम. थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज. आपने आज हमें बहुत कमाल की बातें बताई हैं, बिकॉज दिस इज़ फैंटास्टिक. योर एक्सपीरियंसेस आर अमेजिंग. So thanks for coming on the show, and we are really happy to host you. It's an honor to host you. Thank you. So this was Soham Sarkar, and we had such a great interview with him today. और आपको किसी भी तरह की बात की, किसी भी तरह की ज़रूरत है, so just post on the community and we'll be able to collaborate, we'll be able to answer you, we'll be able to solve the problems for you. So let's do this and have a great day, have a great weekend, and we'll see you next week.